الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے ساتھ ہم لوگ ایک بابرکت مجلس اور محفل کے اندر شریک ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جہاں پر قرآن کریم کو مکمل کیا جائے، تکمیل قرآن کریم کے موقع پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ جل جلالہ قبول فرماتے ہیں۔ آج ہماری یہ محفل، یہ مجلس ہمارے عزیز بیٹوں سے اور اولاد سے بڑھ کر عزیز ہمارے بھائی، ہمارے چھوٹے بیٹوں کی طرح مولوی محمد شیراز صاحب، جنہوں نے قرآن کریم مکمل تراویح کے اندر سنایا، اللہ جل جلالہ ان کا سنانا قبول فرمائے۔ جن حضرات نے مکمل قرآن کریم سنا، میرا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ اولاد سے بڑھ کر پیارے مولوی شیراز صاحب، اس کے پیچھے ایک بات ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر میری 3 بیٹیوں کا ختم قرآن ہے، اور ہماری مسجد کے اندر میرے سگے بیٹے کا ختم قرآن ہے۔ میں 4 اپنے سگے بچوں کا ختم قرآن چھوڑ کر حافظ شیراز کی دعوت پر لبیک کہا ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹوں سے بڑھ کر عزیز۔ اللہ جل جلالہ اس موقع کی مناسبت سے 2-4 باتیں عرض کروں گا، اللہ جل جلالہ مجھے صحیح سے عرض کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کا کلام، اللہ جل جلالہ کا قرآن، اللہ جل جلالہ کی کتاب، اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اور قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، ایک لحاظ سے یہ ایک صورت ہے اور ایک لحاظ سے یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں، مضمون کے لحاظ سے ایک بنتی ہے اور ویسے یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی آیت
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کی ابتدا اور قرآن کی انتہا اپنے نام کی ایک صفت کے ساتھ کیا ہے، ابتدا بھی اپنی ایک صفت کے ساتھ کی ہے اور انتہا بھی اپنی ایک صفت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ایک ذاتی نام ہے، اللہ جل جلالہ کے کئی اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کے مالک ہیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن کو نازل فرمایا ہے، اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا میں اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے قرآن کے انتہا میں اپنے ایک صفت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت ہے رب ہونا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور انتہا کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے رب ہونے کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے رحمان بھی لا سکتے تھے، اللہ چاہتے رحیم بھی لا سکتے تھے، اللہ چاہتے کریم بھی لا سکتے تھے۔ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، کریم بھی اللہ کی صفت ہے، غفور بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ رب کا معنی سمجھیں گے مجھے اور آپ کو مزہ آئے گا، رب کا معنی سمجھیں گے پھر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اللہ جل جلالہ رب ہیں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ کاش کہ میں پورے اس بیان کے اندر اللہ کے رب کی صفت کو میں بیان کر سکوں، میں کوشش کروں گا رب کا معنی بیان کرنے کی۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی تربیت کرنے والا، رب کا معنی پالنے والا۔ عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صرف پالنے والا نہیں بلکہ اس کا معنی رب ہی ہے۔ رب کا معنی میں اپنے لحاظ سے عرض کرتا ہوں، رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ تربیت ایسے سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم تربیت کرنے والا۔ جو بھی تربیت کرنے والا ہوگا اس کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر تربیت کون کرتا ہے؟ اچھے طریقے سے کون کرتا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اچھی تربیت کرنے والے یا ماں ہے یا باپ ہے، اماں اور ابا۔ اماں اور ابا کے علاوہ چاہے وہ روحانی اماں ہو، چاہے وہ روحانی ابا ہو، چاہے وہ جسمانی اماں ہو، چاہے وہ جسمانی ابا ہو، ابا اور اماں کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کامل طریقے سے تربیت کر سکے۔ اس لیے کہ جتنی محبت اور پیار ماں کے دل میں اولاد کی ہے، اتنی دنیا کے اندر کسی کے اندر وہ محبت ہو سکتی ہی نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں کو تقسیم کیا۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ممتا کی شکل کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ہر وہ ماں جس کے اندر ممتا اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت رکھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دنیا کے اندر میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں اپنی عمر اور تجربے اور علم کی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری عمر کم ہو، میری عمر سے زیادہ لوگ آپ میں بیٹھے ہو سکتا ہے میرا علم کم ہو،
मुझसे ज़्यादा इल्म वाले इस मजमा के अंदर शरीक होंगे। खसूसन मेरे दाईं तरफ उलमा और मुफ्तियान मौजूद हैं, इनका इल्म मुझसे ज़्यादा है और तजर्बा आप हज़रात का मुझसे ज़्यादा होगा, मुशाहिदा आपका मुझसे ज़्यादा होगा। दुनिया के अंदर मैं अपने इल्म, अपने मुशाहिदे, अपने तजर्बा की बुनियाद पे एक बात अर्ज करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं, मैंने मुशाहिदा किया नहीं, आज तक माँ के हाथों में उसका कोई बच्चा कत्ल हुआ हो मैंने नहीं देखा। चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवान है, हैवान हाथी है, हाथी के पाँव के नीचे आकर उसका बच्चा आज तक नहीं मरा। उसकी वजह ये है कि पाँव के, हाथी के पाँव के नीचे बड़े से बड़ा जानवर आ जाए, उसकी जिस्म की वजह से, उसके वजन की वजह से उस पे मौत आ जाएगी। लेकिन आपने हाथी को अपने पाँव के नीचे दबाकर अपने बच्चे को मारते हुए नहीं देखा होगा। चाहे चरिंदे दरिंदे हो, आपने वाशी जानवरों को देखा होगा, जंगल के वाशी दरिंदे, चाहे वो शेर है, खूनखार जानवर है, चाहे वो चीता है, वो एक को काट के फाड़ के चीर के रख देता है, खून रगों से निकाल लेता है। लेकिन वही चीता अगर वो ममता है अपने बच्चे को अपने मुंह में उठाती है, अपने मुंह में बच्चे को उठाए हुए उसकी नरम सी गर्दन पर उसके दांत का निशान आपको नजर नहीं आएगा। हमारे गली मोहल्ले के अंदर कुतिया और कुत्ते नजर आते हैं, इंसान को काट लेते हैं, डेरे पर जानवरों को काट लेते हैं, लेकिन आज तक आपने किसी कुतिया के मुंह के अंदर उसके आने वाले बच्चे को, उसके दांत के निशान को नहीं देखा होगा। उसके नुकीले दांत अगर किसी जानवर को फाड़ देते हैं, लेकिन अपने मुंह के अंदर आने वाले बच्चे को उसको जख्म नहीं करते, इसलिए कि वो माँ है, माँ के दिल के अंदर ममता है, ममता की वजह से वो अपने बच्चे से प्यार करती है। कैसा है अगर एक जानवर अपने बच्चे से प्यार करे, चाहे वो चरिंदा है, चाहे वो दरिंदा है, चाहे वो वाशी जानवर है। अल्लाह के हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, एक सुना हुआ वाकया, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। मैंने एक वाकया सुना है, एक वाकया पढ़ा है। वाकया सुना और पढ़ा क्या है, अल्लाह के हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक काफले के साथ जाते हैं, एक जगह पे क़ियाम करते हैं, एक सहाबी रसूल रास्ते से साइड पे हट जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आते हैं और उनके जिस्म के ऊपर चादर है, चादर के नीचे हाथ में कोई चीज चपाई हुई है और उनके सर के ऊपर एक चिड़िया यूं मुंडला रही है, अपने परों से वो पर फड़फड़ा रही है। जब यूं आते हुए देखा, अल्लाह के हबीब ने पूछा, ऐ मेरे सहाबी ये क्या है, आपके हाथों में क्या है? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ झुंड में गया था, मैं झाड़ियों में गया, झाड़ियों के झुंड के अंदर मुझे एक चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने उनको उठा लिया, उनके घोंसलों से बच्चे को उठाया, उसके बाद उनकी ये माँ आई है, ये मेरे ऊपर जब से मैं चला हूँ मेरे साथ साथ चलती है, मैं रुकता हूँ रुक जाती है, चलता हूँ चलती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबे, ऐ मेरे साहबी, अपने हाथ से बच्चों को तुम यहाँ रख दो। उन्होंने अपने उन बच्चों को निकाला, उस जगह पे रख दिया, चिड़िया आती है, वो वहां पर उसने अपने बच्चों के ऊपर बैठ जाती है, उसने बच्चों के ऊपर बैठकर उन बच्चों को अपने परों के नीचे ले लिया। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है, ऐ मेरे सहाबी, इन बच्चों को उठाओ, जहां से उठाया था वहां तक पहुंचा के आओ। वो सहाबी उठे, उनको वहां पहुंचा के आए। अल्लाह के
के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ ये चिड़िया अपने बच्चों से प्यार करती है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा प्यार करती है। फरमाया, मेरा अल्लाह इससे 70 गुना अपने बंदे से प्यार करता है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है। मेरे अजीज दोस्तों, कहते हैं एक नौजवान था, एक वाकया है, एक नौजवान था, जवानी का आलम है, जवानी के अंदर इश्क का भूत सवार हुआ, उसको किसी लड़की पे दिल आया, उसने उसको प्रपोज किया, पैगामे निकाह भेजा, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की की तरफ से जवाब आया, पैगाम का जवाब आया, जवाबे पैगाम आया। उसने कहा, मैं एक शर्त रखूंगी, अगर मेरी शर्त को पूरी कर लो मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हो। उस लड़के ने कहा, एक शर्त क्या चीज होती है? 10 भी रखोगे मैं उसको कबूल करूंगा, मैं उस पे अमल करूंगा। उस लड़की ने कहा, अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो अपनी माँ का कलेजा लेके आओ, अपनी माँ का जिगर निकाल के लाओ, जब जिगर निकाल के लाओगे मैं तुझसे निकाह कर लूंगा। वो जालिम वहां से उठा, उसने तलवार ली है, वो खंजर लिया है, अपने घर में दाखिल हुआ, अपने माँ पे वार किया है, उनको जख्मी किया है, माँ को मौत के घाट में उतार दिया, सीने को चाक किया, अंदर से कलेजा निकाला, जिगर को निकाला, दौड़ता हुआ जा रहा है, रस्ते में पत्थर आया, पत्थर से ठोकर लगी, वहां से गिरा, निकले हुए जिगर से आवाज आती है, मेरे बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी, तो जख्मी तो नहीं हुआ? ये वो माँ है जो अपने बच्चे से प्यार करती है। पिछले साल के अंदर दीरबाला इलाका है KPK के अंदर, वहां का एक नौजवान वो टिकटॉकर था, टिकटॉक की वीडियो बनाता, उसके माँ बाप ने उसको मना किया, उनको रोका है, बेटा ये काम न किया कर, कभी रोकते रहते। एक दिन उसको जबरदस्ती रोका, नौजवान तैश में आया, उसके पास पिस्टल था, उसने वार किया, एक फायर अम्मा को किया, एक फायर अब्बा को किया। अब्बा तो उसी वक्त ढेर हो गए, उसी वक्त ठंडे हो गए, और माँ जख्मों के शदीद जख्मी है और उसकी रगों से खून बह रहा, वो काल की गई है। वहां से लोग आए, उनको एम्बुलेंस पे बैठा के उनको अस्पताल ले जाया गया। जख्मों की ताप न लाते हुए जब वो रुखसत हो रही है, अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर रही, उसकी जुबान से आखिरी 2 जुमले निकले हैं, ए लोगो मेरे बेटे को थाने न देना, वो मेरा बेटा तो पागल है, मेरा बेटा तो बेवकूफ है। माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, बाप भी प्यार करता है, माँ भी प्यार करती है, लेकिन माँ का प्यार एक इस्तिआरा है। अगर माँ का प्यार एक मिसाल के तौर पे कहा जाता है, उसकी वजह ये है, जितनी माँ अपनी औलाद की तरबियत करती है, इस अंदाज में दुनिया को कोई शख्स प्यार नहीं कर सकता। तरबियत के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। माँ जितनी अपनी औलाद की तरबियत करती है, इससे 70 गुना ज्यादा मेरा अल्लाह प्यार करने वाला है, मेरा अल्लाह मोहब्बत करने वाला है। इसलिए मेरा अल्लाह हर इंसान की तरबियत करता है, हर इंसान को पालता है। नंबर 2, जो तरबियत करने वाला है उसको इल्म होना चाहिए कि जिसकी मैं तरबियत कर रहा हूँ इसकी जरूरत क्या है, इसकी कौन सी चीज मांगता है। मेरे अजीज दोस्तों, माँ को पता है कि बेटा क्या चाहता है, अब्बा को पता है बेटा क्या चाहता है। जुबान वाला है तब भी माँ को पता है, अगर वो गूंगा है तब भी माँ को पता है। पंजाबी में कहावत है, गूंगे दिया रमजा माँ ही जाने। माँ को पता है कि गूंगे का इशारा क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया के और लोग होंगे, वो कुछ कहता कुछ और है, वो यूं गिलास से इशारा करेगा, माँ समझेगी, हर आदमी समझेगा ये क्या पानी मांगता है। माँ कहती है पानी नहीं, इस वक्त इसको दूध की जरूरत है। अब वो पानी यूं हाथ से गिलास से इशारा करता है, लोग कहते हैं दूध की जरूरत है,
माँ को पता है अब ये दूध नहीं, अब ये पानी मांगता है। ये इसकी औलाद जो है वो मौश के इशारे भी समझती है। लेकिन अजीज दोस्तों, बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं, माँ को पता भी है इसकी जरूरत क्या है, अब्बा को पता भी है इसकी जरूरत क्या है, लेकिन उसकी जरूरत को पूरा कर नहीं सकते। आपने देखा होगा कई बच्चे घर में जाते हैं, घर में रोते हुए, सुबह स्कूल का वक्त है, माँ ने उसको पकड़ा हुआ है, खींच के बाहर ले आई, रक्षा आ गया, रक्षे पे बिठा दिया, बच्चे की आंखों में आंसू है और माँ की आंखों में आंसू टपकते हुए हैं। बच्चे की आंख का आंसू तो समझ आता है, माँ भी रो रही है, उसके आंसू क्या है, उसकी वजह ये है, अब घर में थोड़ी देर पहले जब घर से निकलने लगा था, उसने ये सवाल किया, अम्मा मेरे साथी का बैग लाल रंग का है, मैं भी लाल रंग का बैग लूंगा। अम्मा मेरा जो दोस्त मेरी क्लास में पढ़ता है वो तो ब्रेकफास्ट के अंदर यो चीज खाता है, उसके साथ जो डिब्बा टिफिन लाता है उसमें हर रोज अंडा होता है, मेरे टिफिन के अंदर अचार होता है, आज मैं भी अंडा लेके जाऊंगा। अब वो रोता है मुझे अंडा मिला नहीं, माँ रोती क्यों है, मैं अंडा इसको दे ना सके, इसकी जरूरत को पूरी कर न सके। माँ मोहब्बत तो करती है, माँ को जरूरत का इल्म है, लेकिन इल्म होने के बावजूद उसकी कुदरत नहीं है उसकी जरूरत को पढ़ सके। मेरे अजीज दोस्तों, माँ अपने बच्चे से प्यार करेगी लेकिन दूसरे के बच्चे से उतना प्यार नहीं करेगी जितना मोहब्बत अपनी औलाद से करेगी। यह मेरे अल्लाह की सिफत है, चाहे गरीब हो उससे भी मोहब्बत करता है, चाहे अमीर है उससे मोहब्बत करता है, काला है या गोरा है उसकी नजरों में बराबर है, जवान है या बूढ़ा है उसकी नजरों में बराबर है, गुनाहगार है या काफिर है, मुसलमान है या काफिर है उसकी नजरों में बराबर है। उसकी वजह यह है अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने पैदा किया है, मेरा अल्लाह जिसको पैदा करता है उससे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जिसको पैदा किया उससे प्यार भी किया है, उनकी जरूरियात को मेरा अल्लाह पूरी करता है। मेरे अल्लाह को इल्म है, मेरे अल्लाह को इल्म कैसे है, किसकी जरूरत क्या है। अब तवज्जो फरमाइएगा, एक अंडे से बच्चा निकलता है, मेरे अल्लाह को इल्म है इसकी जरूरत क्या है। अगर एक अंडे से निकलने वाला बच्चा उसकी जरूरत का इल्म है, मेरे अल्लाह अलीम है, मेरे अल्लाह जानते हैं इंसान के पेट के अंदर बच्चा है, मेरे अल्लाह को इल्म है इसकी जरूरत क्या है। हैवान के पेट के अंदर उसका बच्चा है, मेरा अल्लाह जानता है इसकी जरूरत क्या है। पानी की मखलूक है उसकी जरूरत का इल्म है, हवाओं की मखलूक है उसकी जरूरत का इल्म है, जंगलात की मखलूक है उसकी जरूरत का इल्म है, हवाओं में उड़ने वाली मखलूक है उसको इल्म है, जमीन में रेंगने वाले उसको इल्म है उसकी जरूरत क्या है। सिर्फ जरूरत का इल्म नहीं है, मेरा अल्लाह कुदरत रखता है, सिर्फ कादिर ही नहीं उनकी जरूरियात को मेरा अल्लाह पूरी करता है। पूरी कैसे करता है, माँ के पेट के अंदर बच्चा 4 माह का हुआ, उसके बाद उसने रूह फूंकी है, अब इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत मेरा अल्लाह उसके पेट के अंदर पूरी कर रहा। ग़िज़ा माँ खाती है, ग़िज़ा माँ खाती है, दूध माँ पीती है, पानी माँ पीती है, फ्रूट माँ खाती है, उसके फ्रूट से ग़िज़ा बना के माँ के पेट के अंदर उसको पहुंचा रहा। मेरा अल्लाह ऐसा कादिर है, समंदर की मछलियों चाहे वो अंडों से निकलती है उनकी जरूरियात को पूरा करता है, उनकी ग़िज़ा वहां पे पहुंचा रहा। जंगलात के दरिंदे उनको मेरा अल्लाह उनकी ग़िज़ा पहुंचा रहा। मेरा अल्लाह जो जहां पे है जिसको जितनी जरूरत है उनकी खुराक वहां पे पहुंचा रहा। मेरा अल्लाह रब है, मेरा अल्लाह तरबियत करने वाला है, रब के अंदर ये सिफत है, उसको इल्म भी है, जरूरियात का इल्म भी है, जरूरियात पे कादिर भी है, मेरा अल्लाह पूरी करता है। जब तक किसी के दिल के अंदर मोहब्बत ना हो, मेरा अल्लाह इंसान से इतनी मोहब्बत करने वाला, मेरे अल्लाह की मोहब्बत की निशानी मैं और आप यहाँ पे बैठे, मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह मोहब्बत हर इंसान से करता है। फिर इंसान के बाद जो ईमान लाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा अल्लाह उससे बढ़कर उससे मोहब्बत करता है। फिर ईमान के बाद जो अमाल करता है मेरा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अब सवाल तो ये
لیے ہے, उधर रब की तरफ से मोहब्बत का ऐलान है, उधर रब की तरफ से इनामात की बारिश है. क्या मैं और आप, हमारा भी कुछ तकाजा था, हम भी अपने रब को मान लेते, हम अपने रब की मान लेते. हमारा भी कुछ तकाजा था, हम अपने रब से मोहब्बत कर लेते. कितनी मोहब्बत कर लेते. एक मोहब्बत की है मेरे अजीज दोस्तों. हज़रत मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है. फरमाया एक धोबी है, उसका एक बेटा है, उसकी एक बीवी है. अब ये तीन है. धोबी शाही धोबी है, बादशाह के कपड़े धोया करता था. बादशाह के कपड़े, उसके अंदर बादशाह के भी है, उसके अंदर बादशाह की बीवी के भी है, उसके अंदर बादशाह के बच्चों के भी है. उसकी औलाद एक बच्ची थी, एक बेटी है. उनके कपड़े आते, वो कपड़े धोया करते थे. माँ ओ मियाँ बीवी मिलके कपड़े धोते रहे, कपड़े धोते रहे. इनका बच्चा जवान हुआ. इसने एक दिन कहा अब अब्बा मैं काम किया करूंगा, माँ को घर में बिठा दो, वो काम न करे, आज के बाद मैं आपके साथ जाऊंगा. उसने कहा ठीक है. माँ को घर में बिठा दिया. अब ये दोनों बाप बेटा कपड़े धोने के लिए जाते. अब उस बच्चे के अंदर एक दिल के अंदर ख्याल आता गया, ख्याल पवस्ता हुआ, फिर वो मजबूत होता गया. हुआ क्या है, उसने महसूस किया है, ये आप भी जानते हैं, घरों के अंदर आप साहिबे औलाद भी हैं, आप घर वाले भी हैं. अगर बड़ी औरतें हैं उनके कपड़ों का रंग और होगा, नौजवान औरत है कपड़े का रंग और होगा, बूढ़ी औरत है कपड़ों के ऊपर फूलों का डिजाइन और होगा. अगर नौजवान औरत है उसके कपड़ों का डिजाइन और होगा. अब उसने यूं देखा, ये बादशाह की बीवी के कपड़े, ये बादशाह की लड़की के कपड़े, अगर लड़की के कपड़े ऐसे हैं, बादशाह की बेटी कैसी होगी. अब वो सोचता रहा, वो मजबूत होता रहा. एक वक्त आया, बादशाह की बेटी से उसको मोहब्बत होती रही. मोहब्बत के सिले के अंदर फिर उसके कपड़े के धोने का अंदाज बदला, इस्त्री करने का अंदाज बदला, उनको तय लाने का अंदाज बदला. फिर वो कपड़ों को धोता, अंदाज और था, तय लगाता, अंदाज और था, खुशबू लगाता, उनको वो चूमता, सर पे रखता, फिर वो कपड़े उनके घर जाते. अब एक दफा बात उसके धोबी की बीवी ने कहा, धोबी आपको पता नहीं कि अब अंदाज बदल गया, आपने अपने बेटे को देखा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, अनकरीब कहीं ऐसा ना हो हमारे इलाके में फसाद बर्पा हो जाए. अगर जो मैंने देखा है अगर ये हकीकत है. उसने पूरी बात बता दी. मैंने महसूस किया है हमारे बेटे को शहजादी से मोहब्बत हो गई. उसने कहा तुझे कैसे पता चला. उसने कहा इस तरह अंदाज बदला. उसने कहा देखता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने गौर नहीं किया. क्या किया जाए, इसको रोक दिया जाए. उसको रोक दिया. अब बच्चे की हालत गैर होती जा रही, कपड़े धोता रही, मोहब्बत के अंदर घुलता जा रहा, मोहब्बत इश्क में बदला. अब उसको घुलता जा रहा. उसने खाना खत्म किया, पीना खत्म किया, रातों को नींद उसकी खत्म हो गई. मेरे अजीज दोस्तों, उसकी वजह क्या है. अब ये बात हुई, फिर उस बादशाह के पास उसकी बीवी जाती है. एक दफा उस शहजादी ने कहा मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ. उसने कहा 100 सवाल कीजिए. सवाल क्या है. पहले कपड़े कौन धोता था. बादशाह हम धोते थे. शहजादी हम धोते थे. अब कौन धोता है. शहजादी हम धोते हैं. कहा कि नहीं नहीं, अब वो भी महसूस कर चुकी थी. अब फर्क है, पहले कपड़े और तरह थे, दरमियान में कुछ अरसा आया, अंदाज बदला, अब फिर अंदाज वही पुराना हुआ. उसने कहा शहजादी आपको कैसे पता चला. उसने भी बतला दिया. अब इसने उसको नहीं देखा, उसने उसको नहीं देखा, उसके सिर्फ कपड़ों को देखा था. कपड़ों को देख के उसने अंदाजा लगाया ये बादशाह की लड़की के कपड़े, जिसका लिबास ऐसा है, पहनने वाला कैसा होगा. जिसके लिबास कीमत वाला, उसको पहनने वाला कैसा होगा. मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों, हमसे तो वो धोबी का बेटा बाजी ले गया जिसने सिर्फ एक कपड़ों को देखा, शहजादी के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया. मैंने और आपने अपने रब को देखा तो नहीं, रब की निशानियों को देखा है. रब की निशानियां क्या है, मैं दूर नहीं जाता, मैंने अपने जिस्म में देखा, रब की निशानियों को देखा. आप भी गौर कीजिए ना, यहाँ पे 200-300 बंदा बैठा, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा इसके ऊपर अब ये लाक है, इसको
अनलॉक करने के लिए यो चेहरे के सामने करेंगे, अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। उसकी वजह ये है यहाँ 1000 बंदा हो, सबके सामने करते जाएंगे, अनलॉक नहीं होगा। इससे लॉक से अनलॉक करने के लिए वही फेस दिखाना होगा जो इसके सामने रिकॉर्ड किया है, यानी ये बतलाएगा 1000 बंदा है, 1000 बंदे का चेहरा अलग है। वो कौन है? जिसने 1000 चेहरों को अलग पैदा किया। मेरे अजीज दोस्तों, हजारों चेहरों को अलग पैदा करना ये मेरे अल्लाह की निशानी। मेरे अल्लाह ने जुबान को पैदा किया। जुबान कितनी है? ये 2 या 3 इंच की जुबान है। यहाँ पे बैठे मशरक से लेके मगरब तक जुबान का साइज एक है, शमाल से लेके जनूब तक जुबान का साइज एक है, लेकिन जुबान से निकलने वाले अल्फाज अलग है। भाई अमीन ने कलाम पढ़ा, जुबान एक जैसी, मैंने कलाम कहा है, मेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज और है। हिंदी वाले जुबान एक है, वो हिंदी बोले, सिंध वाले सिंधी बोले, अंग्रेज वाले अंग्रेजी बोले, अरे उर्दू वाले उर्दू बोले, पख्तून वाले पख्तू बोले, पश्ती फारसी वाले फारसी बोले, हर जुबान वाला अलग जुबान बोले। अगर पूरी दुनिया के अंदर कितनी जुबानें बोली गई, वो कौन है? जिसने हर जुबान से अल्फाज को अलग पैदा किया। वो पैदा करने वाला अल्लाह है, मेरे अल्लाह की निशानी है। मेरे अल्लाह ने यो अंगूठे को पैदा किया है, फिंगर प्रिंट्स लगते हैं, थंब प्रिंट लगता है, बायोमेट्रिक होती है। आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाए, आप जोर लगा ले, अपना यू अंगूठा लगाया, अपने बेटे को ले जाओ, अपने सगे भाई को ले जाओ, सगे भाई के अंगूठे से आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा। बायोमेट्रिक ने बता दिया इस वक्त दुनिया के अंदर 8 अरब की आबादी है, 8 अरब के अंदर 16 अरब अंगूठे हैं, हर अंगूठे का निशान अलग है। वो कौन है? जिसने 16 अरब अंगूठों के निशान को अलग अलग पैदा किया। ये मेरे खालिक की निशानी है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने आंख को पैदा किया। आंख कैसी चीज है? आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, जब एयरपोर्ट पे जाएंगे वो कहेगा पासपोर्ट को ले लिया, कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ देखेंगे, आंख से शुआ निकलेगी, आंख से शुआ की वजह से उसका रिकॉर्ड पूरा उसके सामने आ जाएगा। अगर 8 अरब है, 8 अरब इंसान है, 16 अरब आंखें हैं, हर आंख की अशुआ अलग है। वो कौन है? जिसने पैदा किया। ये मेरे खालिक की निशानी है, मेरे अल्लाह की निशानी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अल्लाह ने जिस्म को पैदा किया, हर जिस्म का अलग है। मेरे अल्लाह ने पैदा किया, रंग अलग है। आप जमींदार हैं, अगर जमींदार नहीं, इलाका जमींदारों का है, देहात है, देहाती इलाका है, नहर एक है, एक नहर से एक खाला निकला, एक खाले से मोगा है, एक मोगे से एक नक्का है, एक नक्के से पानी निकला, एकड़ एक है, एक एकड़ के अंदर आपने सब्जी लगा दी, वही उसी पानी से भिंडी को पैदा किया, उसी पानी से अनार को पैदा किया। अगर 100 किस्म की सब्जियां हैं, 100 किस्म की सब्जी का रंग अलग पैदा किया। मेरे अल्लाह की निशानी 100 फल हैं, फल का रंग अलग है, पानी एक है, एक पानी से एक जमीन से 100 किस्म के फल को पैदा किया। ये मेरे अल्लाह की निशानी मेरे और आपके सामने अनार का पौधा है, इसी के अंदर पत्ते सब्ज है, फूल सुर्ख है। ये कौन है? जिसने सब्ज पत्तों से सुर्ख फूलों को पैदा किया। मेरे अल्लाह की निशानी। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुमने अल्लाह को पहचाना, अल्लाह को कैसे पहचाना, अल्लाह की निशानी क्या है? फरमाया मैंने देखा है, एक किस्म है, एक पत्ते हैं, पत्ते सब्ज है, वही सब्ज पत्ते अगर रेशम का कीड़ा खाए उससे रेशम पैदा हो, वही सब्ज पत्ते हैं। हिरन खाए उसकी नाव से कस्तूरी निकले, वही सब्ज पत्ते हैं। बकरी खाए वो मेंगनियां पैदा होती है। वो कौन है? जिसने सब्ज पत्तों की ग़िज़ा बना के हिरन के पेट से कस्तूरी को पैदा किया। वो कौन है? जिसने सब्ज पत्तों की ग़िज़ा खिला के दूध को पैदा किया। वो मेरा अल्लाह है जिसने सब्ज पत्तों को अलग अलग खिला के अलग चीज को बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों, एक जानवर खाता है, खा के उसी से सब्ज पत्तों से गोबर बने, उसी सब्ज पत्तों से दूध बने, उसी सब्ज पत्तों से पानी बने, उसी सब्ज पत्तों से पेशाब बने। वो कौन है? जिसने सब्ज पत्तों को खिला के दूध को अलग किया है, पेशाब को अलग किया है, पखाने को अलग किया है, मेंगनियों को अलग किया है। वो मेरा अल्लाह है। ये मेरे
اللہ کی نشانی ہے وہ کون ہے؟ آج دنیا کے اندر آپ کو مصور ملیں گے، تصویریں بنانے والے، شکلیں بنانے والے کاغذ کے نقشہ بنائیں گے، نقشہ نویس کاغذ پہ نقشہ بنائے گا، وہ زمین کی مٹی پہ نقشہ بنائے گا، ریت کے ذرات پہ نقشہ بنائے گا، لیکن جب سے کائنات پیدا ہوئی آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جو پانی کے قطرے پہ نقشہ بناتا ہو۔ وہ کون ہے؟ جس نے پانی کے قطرے پہ ایک عرب کی شکلوں کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے اللہ کی نشانی، زمین پہ اللہ کی نشانی۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے ایک مسجد بنانی ہو، ہم 70 انجینئر جمع کرتے ہیں، اس کا حال اتنا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، ہم اس کے اندر پلر نہیں آنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہاں تک تو ممکن ہے، جب یوں بڑھے گا یہ ناممکن ہے، اس سے بڑھ جائے گا یہ تو محال ہو جائے گا۔ وہ کون ہے؟ جس نے ساری زمین کو گھیرے میں لیا، آسمان کو اٹھا دیا، بغیر سٹون کے پیدا کیا، بغیر سٹون کے پیدا کرے، بغیر سٹون کے پیدا کرے، جب سے پیدا کیا آج تک اس کی پیدائش میں فرق نہیں آیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے آسمان کی طرف دیکھو، نظریں اٹھاؤ، تم واپس لے آؤ، پھر نظریں جھکاؤ، پھر واپس لے جاؤ، تمہیں ایک پھٹن بھی نظر نہیں آئے گی۔ کپڑا پھٹ جائے گا، لکڑی ٹوٹ جائے گی، پلاسٹک پھٹ جائے گا، لوہے کو زنگ لگ جائے گا، آسمان کو زنگ نہ لگا، آسمان پھٹا نہیں، آسمان ٹوٹا نہیں۔ وہ کون ہے؟ جس نے ٹوٹنے نہ دیا، جس نے پھٹنے نہ دیا، جس نے قائم رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ بغیر فیول کے پرندوں کو اڑا رہا۔ وہ کون ہے؟ بغیر فیکٹریوں کے جانوروں کو کھلا رہا۔ جس کی جو خوراک ہے اس کو وہ کھلاتا ہے۔ اگر جس کی خوراک پانی ہے اس کو پانی پلایا، جس کی خوراک دودھ ہے اس کو دودھ پلایا، جس کی خوراک گوشت ہے روزانہ اس کو گوشت کھلایا، جس کی خوراک سبزی ہے اس کو سبزی کھلائی ہے، بغیر اسباب کے کھلائی ہے۔ میرا اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو کھلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یقین کے لیے پوچھا، اے میرے اللہ تو کیسے کھلاتا ہے، کیسے رزق دیتا ہے؟ فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ ڈنڈا مارو، اس پتھر پہ عصا مارو۔ عصا کو مارا ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر مارو، پھر ٹکڑا ہوا، پھر مارو، پھر ٹکڑا ہوا۔ اندر سے کیڑا نکلا ہے، یعنی ٹوٹے ہوئے پتھر سے کیڑا نکلتا ہے، کیڑے کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہے۔ فرمایا میں یہاں بھی کھلاتا ہوں، یہ تو دنیا ہے، اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے اللہ کی کتنی نشانی ہے۔ ہم سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہوگا، وہ دھوبی کا بیٹا تو اس عورت کے کپڑوں کو دیکھ کے مر مٹا۔ ہم نے اپنے خالق کی نشانی کو دیکھا پھر بھی محبت نہ کی، ہم نے خالق کی محبت کو دیکھا پھر بھی محبت نہ کی۔ ہم سے بڑا بھی کوئی دیوس ہوگا، ہم محبت کرنے پہ آئے، اگر گلی محلے کی کسی لڑکی کو دل دے دے، محبت دینے پہ آئے، گلی محلے کے کسی لڑکے کو دل دے دے اور راتوں کو تڑپتے رہے، اگر نہ تڑپے اللہ کی ذات کے لیے، ہمیں وقت نہ ملے تڑپنے کا، ہمیں وقت نہ ملے اللہ کے سامنے قیام کا، ہمیں وقت نہ ملے اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا، اگر محبوب ناراض ہو جائے، میں نے کھایا کچھ نہیں، میں نے پیا کچھ نہیں، میں میسج پہ میسج کرتا جا رہا، جواب کا انتظار ہے۔ ارے ہم نے خالق کے لیے بھوکا رہنا سیکھ لیا ہوتا، ہم نے خالق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ لیا ہوتا، ہم نے خالق کے لیے قیام کرنا سیکھ لیا ہوتا، خالق کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ اللہ کی محبت والوں سے، اللہ کی محبت والے، اللہ کا نام لینے والے، اللہ اللہ کرنے والے دنیا کے اندر دنیا موجود ہے اور تب تک موجود رہے گی جب تک اللہ والے رہیں گے۔ اللہ والوں نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ والوں نے ہمیں اللہ کی محبت دی ہے، اللہ کی محبت سیکھنی ہے، اللہ والوں کے قدموں پہ آ جائیں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، میرا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے گا، اپنی اطاعت توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کو اللہ کی محبت ہوئی، جس کو اللہ کی اطاعت نصیب ہوئی، اس کو دنیا جہانوں کی دولت مل گئی۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی پہچان عطا فرمائے، اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔